وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری کی ملاقات، مجموعی ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ آصف علی زرداری نے وزیر اعظم کی مزاج پرسی بھیگی۔ آرمی چیف کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہوگی۔ اقتصادی استحکام کے لیے میثاق معیشت وقت کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی دور میں ملکی قرضہ 25,000 ارب سے بڑھ کر 40,000 ارب ہو گیا۔ دعوے سے کہتا ہوں ملک ڈیفالٹ نہیں کرے گا۔ احتجاجی اور منفی سیاست کی وجہ سے ڈالر کی قدر کم نہیں ہو رہی۔ مہنگائی پر قابو پانا اور عوام کو ریلیف کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا نجی ٹی وی کو انٹرویو۔ وزیر اعظم آئین کے مطابق پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تقرری کریں گے۔ امید ہے آرمی چیف کے تقرری کے لیے وزارت دفاع کو کل تک جی ایچ کیو سے نام موصول ہو جائیں گے۔ سینئر فوجی افسروں کے نام بھیجنا جی ایچ کیو کا استحقاق ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف۔ ملک میں سیاسی عدم استحکام عمران خان کا مقصد ہے جو پورا نہیں ہو رہا۔ عمران نیازی کی وجہ سے ملک بحران میں مبتلا رہا، لوگوں کو بے روزگار کیا گیا۔ 4 سال میں ملکی معیشت تباہ، جبکہ عمران خان، بشرا بی بی اور فرح گوگی کی بہتری ہوئی۔ الیکشن مقررہ وقت پر صاف اور شفاف ہوں گے، وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ عمران خان کی تمام سیاسی زندگی یو ٹرن میں ہی گزرے گی۔ حقیقی آزادی کے جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر ملک میں تقسیم، نفرت اور انتشار پھیلایا گیا۔ منافرت پر مبنی سیاست سے ملک اور اداروں کو نقصان ہوا۔ عمران نیازی کی سیاست ملک اور عوام سے نہیں، ذاتی مفادات سے جڑی ہوئی ہے۔ وفاقی وزیر شہری رحمان۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات 15 جنوری کو ہوں گے۔ سندھ حکومت کی الیکشن ملتوی کرنے سے متعلق درخواست مسترد۔ الیکشن کمیشن کی چیف سیکریٹری اور آئی جی سندھ کو سیکیورٹی یقینی بنانے کی ہدایت۔ آمدن سے زیادہ اثاثوں کا ریفرنس، احتساب عدالت کا اسحاق ڈار کے خلاف کارروائی ختم کرنے کا حکم۔ نیب کے ترمیمی ایکٹ کے مطابق عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، عدالت نے ریفرنس نیب کو واپس بھجوا دیا۔ عوام کو سستی بجلی کی فراہمی کے لیے 500 kV سکی کناری ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد۔ حکومت پانی، شمسی اور ہوا سے ماحول دوست بجلی کی پیداوار پر توجہ دے رہی ہے۔ پچھلے دور میں التوا کا شکار منصوبوں پر دوبارہ کام شروع کر رہے ہیں، وزیر توانائی خرم دستگیر۔ پی ٹی آئی حکومت نے اپنے دور میں معیشت کو تباہ حال کیا، گالم گلوچ اور مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ برادر اور دوست ممالک سے تعلقات خراب کیے۔ اتحادی حکومت نے سیاسی مفاد کے بجائے ملکی مفاد کو ترجیح دی۔ آئندہ انتخابات میں مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی کا جہلم میں ورکرز کنونشن سے خطاب۔ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ پی ٹی آئی دور حکومت میں بیرونی سرمایہ کاروں کے اعتماد کو نقصان پہنچا۔ نوجوانوں کو مستقبل کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مہارتوں سے لیس کرنے کی اشد ضرورت ہے، وفاقی وزیر احسن اقبال۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی، جموں میں مزید ایک نوجوان شہید۔ میروائس زمر فاروق کا نوجوانوں کے دوران حراست قتل پر اظہار تشویش، عالمی برادری سے ماورائے عدالت قتل کے واقعات روکنے کا مطالبہ۔ انڈونیشیا میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 268 ہو گئی، 1000 سے زائد زخمی، ہزاروں افراد بے گھر۔ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری۔ ہلاک ہونے والوں میں زیادہ تر اسکولوں کے بچے ہیں جو زلزلے کے وقت تعلیمی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ وسطی چین میں آتش زدگی، 38 افراد ہلاک، متعدد زخمی۔ واقعہ ہینان صوبے کی ایک فیکٹری میں پیش آیا، کئی گھنٹوں بعد آگ پر قابو پا لیا گیا۔ فیکٹری میں کیمیکلز تیار کیے جاتے تھے۔
जापान का नए इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजर्बा। बहरुल के ऊपर 100 किलोमीटर की बुलंदी पर मिसाइल हमले को कामयाबी से नाकाम बनाया गया। इंटरसेप्टर मिसाइल अमेरिका और जापान ने मुश्तरका तौर पर तैयार किया। जनूबी अफ्रीका हॉकी नेशंस कप कौमी हॉकी टीम की शिरकत की तस्दीक। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और नेशनल बैंक ने माली ताउन की यकीन दहानी करा दी। और टी20 वर्ल्ड कप 2024 के फॉर्मेट का ऐलान। वेस्ट इंडीज और अमेरिका की मेजबानी में होने वाले इवेंट के फॉर्मेट में तब्दीली। पहले मरहले में 20 टीम्स 4 ग्रुप्स में तकसीम होंगी। सुपर 8 मरहला 2 ग्रुप्स में तकसीम। 4 टॉप टीम्स सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा खौसर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। हमारा रहबर सबसे बेहतर। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। हमारा रहबर सबसे बेहतर, ठंडे को ठंडा और गरम को रखे गरम। फ्रॉम द हाउस ऑफ ईगल स्टार एंड रहबर। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मुलाकात की है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाली मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने मजमूई मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। आसिफ अली जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी भी की। वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं कि मुल्क डिफॉल्ट नहीं करेगा। इक्तिसादी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मईशत वक्त की जरूरत है। निजी टीवी को इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ की तकर्री आइन और कानून के मुताबिक होगी। वज़ीर खजाना ने कहा कि पीटीआई दौर में मुल्की कर्जा 25,000 अरब से बढ़कर 40,000 अरब रुपए हो गया। इमरान खान ने मुल्क को श्रीलंका की तरह दिवालिया करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। इमरान खान और पीटीआई क़यादत पाकिस्तान को आलमी सतह पर बदनाम करना बंद करें। ये जो दावे करने वाले हैं, इनको ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान के इंटरेस्ट में ये सारा ये काम कर रहे हैं या पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं। हकीकत देख लेते हैं कि क्या है। क्या इन्होंने 25,000 रुपए का टोटल कर्जा, जिसमें एक्सटर्नल कर्जा शामिल था बैरूनी, क्या इन्होंने वो 44,500 बिलियन पे नहीं छोड़ा? दूसरी देखें कि जो पब्लिक डेट एंड लायबिलिटीज थी, जो इन्होंने 30,000 अरब पे टेक ओवर की, वो इन्होंने 54,000 अरब पे पहुंचा दी। इसका बेड़ा गर्क करने के बाद कोविड से पहले इस जमात ने और इस लीडर ने इस मुल्क की तबाही करने के बाद कोविड का फिर रिफ्यूज लिया। पहले पिछली हुकूमत में डालते रहे। कर्जे को नए तो नहीं लिए ना, कर्जे तो इनके होते हुए थे। और कर्जे अगर हैं तो ये कितने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व छोड़ के गए हैं। अब बजाय ये कि आप हमें विश करें कि जी हमने बेड़ा गर्क करके मुल्क को छोड़ा और हम दुआ करते हैं कि आप इसको उस भंवर से निकालें, आप दिन रात पाकिस्तान को बदनाम करें ग्लोबल। और इनके उन तकारीर की वजह से हमें क्वेरीज आती हैं। हमें वो मल्टीलैटरल जो अदारे हैं वो उनसे क्वेरीज आती है कि जी ये क्या ये कह रहे हैं, ये ठीक है कि नहीं ठीक है। भाई खुदा का खौफ करो, तुमने काफी तबाही कर दी है। इमरान खान साहब काफी हो गई है पाकिस्तान के साथ। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि मईशत को पिछले 4 साल में तबाही के दहाने पर पहुंचाया गया। हम मुल्क में माशी इस्तेहकाम के लिए कोशां हैं। इसकी रियल वैल्यू है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि इसकी 200 से कम है। मैं आपको एक एग्जैक्ट नंबर कैलकुलेटेड बता दूं, इसकी 190 के करीब होनी चाहिए। उसके लिए अपनी दिन रात मेहनत कर रहे हैं
کہ اس تمام چیزوں کو ہم سیدھے راستے پہ واپس لائیں جو انہوں نے بالکل لینڈ مائن بچھا کے چلے گئے. ساورن کمٹمنٹس کی پاکستان کے بیہاف پہ دوسرے ملکوں کے اداروں کے ساتھ IMF اور دوسروں کے ساتھ اس کو نہ صرف امپلیمنٹ نہیں کیا, اس کو ریورس کر دیا. وہ ساری قیمت ہم نے ادا کی اور اس کی ایک بہت بھاری پولیٹیکل پرائز پے ہو چکی ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں اس تمام چیزوں کے نتیجے میں جو سلائٹ رک نہیں رہی تھی وہ رک گئی ہے. ٹائم اینڈ اگین بتا چکا ہوں کہ پاکستان اپنی ادائیگیاں وقت پہ کرے گا, کرتا رہا ہے, ہمیشہ کرے گا. وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے امید ظاہر کی ہے کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزارت دفاع کو کل تک GHQ سے سینئر افسران کے نام موصول ہو جائیں گے. جیو نیوز کے مطابق وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ سینئر فوجی افسروں کے نام بھیجنا GHQ کا استحقاق ہے. وزیر سامعین کے مطابق پاک فوج میں اعلیٰ عہدوں پر تقرری کریں گے. وزیر دفاع نے گزشتہ روز قومی اسمبلی کو آگاہ کیا تھا کہ آرمی چیف کی تقرری کے لیے وزیر اعظم کی طرف سے سمری وزارت دفاع کو موصول ہو گئی اور اس بارے میں جنرل ہیڈ کوارٹرز کو آگاہ کر دیا گیا ہے. وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان ملک میں سیاسی عدم استحکام چاہتے ہیں لیکن ان کا یہ مقصد پورا نہیں ہو رہا. شفاف اور غیر جانبدار الیکشنز اپنے مقررہ وقت پر ہوں گے. ایک بیان میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ عمران خان حکومت میں ہوں یا کنٹینر پر ان کا مقصد عدم استحکام پیدا کرنا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ ملک جیسے ہی مستحکم ہونے لگا عمران خان چمٹ گیا. 4 سال میں عمران نیازی نے لوگوں کو بھوک دی اور بے روزگار کیا. PTI دور میں ملک بحران میں مبتلا رہا. 4 سال صرف عمران خان, بشرا بی بی اور فرح کوگی کی معیشت بہتر ہوئی جبکہ ملک کی اقتصادی صورتحال تباہی کا شکار ہوئی. وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی شہری رحمان نے کہا ہے کہ عمران خان نے حقیقی آزادی کے جھوٹے بیانیے کی بنیاد پر ملک میں منافرت اور انتشار پھیلایا اور سازشی تھیوری سے اداروں کو نقصان پہنچایا. انہوں نے کہا کہ اس شخص کی سیاست عوام کی بجائے ذاتی مفادات سے جڑی ہوئی ہے. عمران نیازی کی تمام سیاسی زندگی یو ٹرن میں ہی گزرے گی. وفاقی وزیر نے کہا کہ عمران خان گزشتہ 7 ماہ سے امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ پر حکومت گرانے کے الزامات لگا رہے تھے. اب ان کو اچانک خیال آیا کہ اقتدار سے باہر جانے میں کوئی بیرونی اور اندرونی سازش نہیں تھی. شہری رحمان نے کہا کہ امریکی لابنگ فرم کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد عمران خان اپنے بیانیے سے مسلسل یو ٹرن لے رہے ہیں. سیاسی مفاد کے لیے اس شخص نے پاکستان کے عالمی تعلقات کو داؤ پر لگا دیا. الیکشن کمیشن نے کراچی اور حیدرآباد ڈویژن میں 15 جنوری کو بلدیاتی الیکشنز کے انعقاد کا حکم دیا ہے. الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ جاری کرتے ہوئے چیف سیکریٹری اور IG سندھ کو سیکیورٹی اقدامات کرنے کی ہدایت کی. کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد سے متعلق پیپلز پارٹی, جماعت اسلامی, MQM اور PTI کی درخواستوں پر سماعت کرتے ہوئے الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کیا تھا. سندھ حکومت نے الیکشن کمیشن کو بلدیاتی انتخابات 90 روز کے لیے ملتوی کرنے کی درخواست دی تھی. الیکشن کمیشن نے عمران خان کے خلاف توہین کے معاملے کی سماعت 13 دسمبر تک ملتوی کر دی ہے. رکن سندھ نثار درانی کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی. دوران سماعت PTI کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عمران خان زخمی ہے اور ڈاکٹروں نے انہیں سفر کرنے سے منع کیا ہے, اس لیے ان کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور کی جائے. توشہ خانہ کیس میں چیئرمین PTI عمران خان کے خلاف فوجداری کارروائی کے لیے ٹرائل کا آغاز ہو گیا ہے. ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وقاص ملک نے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال کے روبرو بیان قلم بند کرا دیا. انہوں نے بتایا کہ ادارے کی طرف انہیں اتھارٹی دی گئی ہے کہ 21 نومبر کے الیکشن کمیشن کے فیصلے کی پیروی کروں. یہ کارروائی عمران خان کی کرپٹ پریکٹسز سے متعلق ہے. معاملے کی سماعت 8 دسمبر تک ملتوی ہو گئی. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے خلاف نیب ریفرنس واپس بھجواتے ہوئے کارروائی ختم کر دی. جج محمد بشیر نے بریت کی درخواستوں پر محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے مطابق عدالت کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. جلسے اور دھرنے کی اجازت سے متعلق تحریک انصاف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست واپس لے لی. چیف جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں سماعت کے دوران PTI وکیل نے درخواست واپس لینے کی استدعا کی جسے منظور کر لیا گیا. چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ ریکوڈیک منصوبے میں وفاق حصے دار ہے, اس لیے صوبائی حکومت کی سرمایہ کاری کی اجازت کا مسئلہ نہیں. ریکوڈیک معاہدے سے متعلق صدارتی ریفرنس کی سماعت کرنے والے 5 رکنی بینچ کے سربراہ چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو بین الاقوامی ثالثی عدالت کی جانب سے پاکستان پر عائد جرمانے اور ملکی معاشی حالات سے ڈرانے کی بجائے معاہدے کی شفافیت کے بارے میں بتایا جائے. غیر ملکی کمپنی ویری گولڈ کے وکیل مخدوم علی خان نے دلائل میں موقف اختیار کیا کہ صوبائی حکومتیں بین الاقوامی کاروباری منصوبے بنا سکتی ہیں لیکن ریاستی سطح کے معاہدے نہیں کر سکتی.
ریکڈی کے گزشتہ معاہدے میں حائل قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے سرمایہ کار غیر ملکی کمپنی سپریم کورٹ کی رائے چاہتی ہے۔ ریکڈی معاہدے سے پاکستان میں معدنیات کے شعبے میں تاریخ کی سب سے بڑی $4 ارب سے زیادہ کی سرمایہ کاری ہوگی۔ 15 دسمبر تک معاہدہ طے پانے کی صورت میں پاکستان $9 ارب کے جرمانے سے بچ جائے گا اور بین الاقوامی فوجداری عدالت کا متوقع جرمانہ بھی ختم ہو جائے گا۔ صدارتی ریفرنس پر سماعت کل پھر ہوگی۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے برطانوی پارلیمنٹ میں پاکستان سے متعلق آل پارٹیز پارلیمانی گروپ کی شریک چیئرپرسن یاسمین قریشی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے برطانوی رکن پارلیمنٹ کو حکومت کی جانب سے آسان کاروبار، برآمدات کی حوصلہ افزائی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو آسان بنا کر پائیدار اور جامع اقتصادی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے پالیسی اقدامات سے آگاہ کیا۔ وزیر خزانہ نے پاکستان میں تباہ کن سیلاب سے ہونے والے معاشی اور مالی نقصانات کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے اس ضمن میں برطانوی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ وزیر خزانہ نے امید ظاہر کی کہ دونوں ممالک کے درمیان موجودہ تعاون مستقبل میں مزید مضبوط ہوگا۔ یاسمین قریشی نے تباہ کن سیلاب سے ہونے والے جانی اور مالی نقصان پر ہمدردی کا اظہار کیا۔ انہوں نے پائیدار اقتصادی ترقی کے حصول کے لیے موجودہ حکومت کی اقتصادی اور معاشی پالیسیوں کو سراہا۔ اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف سے برطانوی پارلیمنٹ کی رکن یاسمین قریشی نے اسلام آباد میں ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ دونوں پارلیمان کے درمیان روابط کا فروغ باہمی تعاون کے فروغ میں مددگار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاک برطانیہ پارلیمانی دوستی گروپ فعال کردار ادا کر رہا ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا۔ انہوں نے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی ملک کے حقیقی سفیر ہیں اور قومی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ 500 kV سکی کناری ٹرانسمیشن لائن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا۔ تفصیل جانتے ہیں راہیل انصار سے۔ ٹرانسمیشن لائن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر خرم دستگیر نے کہا کہ حکومت ہائیڈرو، سولر اور ونڈ ذرائع سے ماحول دوست اور سستی بجلی کی پیداوار پر توجہ دے رہی ہے۔ 884 میگا واٹ سکی کناری ہائیڈرو پاور منصوبے سے پیدا ہونے والی بجلی کو قومی گرڈ میں شامل کیا جائے گا۔ سکی کناری کا جو پروجیکٹ 18 ارب روپے کا ہے، تو انشاءاللہ بافتہ تحصیل میں، بالا کوٹ شہر میں، میرا اسٹیشن پہ، ہری کا دربند میں اور گڑی حبیب اللہ، یہ 5 اسٹیشنز ہیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی ان کی ایسٹیمیشن ہو جاتی ہے تو ان کے اپروول دے کر ان پر بھی ہم کام شروع کریں گے۔ پیسکو کے گرڈ اسٹیشنز، این ٹی ڈی سی کی لائن، اور ابھی چند ہفتے پہلے ہم نے اسلام آباد کے باہر جو مائرہ اسٹیشن ہے گرڈ، اس کا بھی سنگ بنیاد رکھا ہے کہ یہ بجلی وہاں جائے گی۔ یہ پاکستان میں سستی اور وافر بجلی رکھنے کی بنیاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2024 میں مکمل ہونے والے منصوبے سے 6000 سے زائد افراد کو روزگار ملا ہے۔ ہمارے دور میں شروع کیے گئے عوام دوست منصوبوں کو پچھلے دور میں جان پوچھ کر بند کیا گیا۔ کہ 4 سال کی ترقی دشمنی، غریب دشمنی اور سی پیک دشمنی کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی ہے کہ ہم نے پاکستان کی ترقی کا جو سفر ہے وہ ایک دفعہ پھر اسی جذبے سے شروع کیا ہے جہاں محمد نواز شریف نے چھوڑا تھا۔ تو وہ 4 سال والے جو تھے وہ دیا بجھاتے گئے، آج ہم دیا جلانے ہزار آئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگی رہنما کیپٹن محمد صفدر سمیت دیگر مقررین نے سکی کناری ہائیڈرو پاور منصوبے کی افادیت پر روشنی ڈالی۔ راہیل انصار، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کہا کہ سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے پالیسیوں کا تسلسل ناگزیر ہے۔ نوجوانوں کی صحیح خطوط پر رہنمائی ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ رپورٹ کریں گے رانا افتخار احمد۔ منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر احسن اقبال نے کہا کہ پاکستان میں بہترین پالیسیاں بنائی گئیں مگر ان کو تسلسل کے ساتھ چلنے نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے ترقی میں آج دنیا سے پیچھے رہ گئے ہیں۔ پاکستان میں پالیسیاں بنانے کی کمی نہیں رہی، ہم نے دنیا کی بہترین پالیسیز بنائی ہیں، لیکن ان پالیسیز کو کامیاب اور پیداوار دینے کے لیے جو مدت چاہیے تھی امن اور استحکام کی، ہم ان میں بار بار ڈسرپشنز لاتے رہے۔ آج اگر کوئی پاکستانی نوجوان کو یہ بتائے کہ ہم ایک غلام قوم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانی قوم کی توہین ہے اور تذلیل ہے۔
منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ 2017 میں پاکستان کو ابھرتی ہوئی معیشتوں میں شمار کیا جاتا تھا، لیکن گزشتہ حکومت نے ہمارے تمام منصوبوں کو نہ صرف بند کیا بلکہ الزامات کی بوچھاڑ بھی کر دی، جس سے ترقی کا سفر رک گیا۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں ترقی کے لیے نوجوان نسل کو امن اور استحکام کا ماحول فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے تعمیر ملت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے اندر یقین پیدا کریں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وائی ڈی ایف کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ نوجوانوں کو وہ طاقت ملے، سیلف بلیف کی، وہ کانفیڈنس ملے کہ انہیں یقین ہو کہ یہ اگلے 25 سالوں میں تاریخ کا دھارا تبدیل کر سکتے ہیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے معروف گلوکار شہزاد روئے نے کہا کہ اسکول کی سطح پر بچوں کو شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کے افکار سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے ملک بھر سے ینگ ڈیولپمنٹ فیلوشپ پروگرام کے لیے منتخب ہونے والے 40 طلباء سے حلف بھی لیا۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ مشیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان قمر زمان گائرہ نے اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی دنیا بھر میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہے ہیں۔ ہانگ کانگ میں مقیم پاکستانی قمر منہاس کو ان کی سماجی خدمات کے اعتراف میں اعلیٰ سول ایوارڈ میڈل آف آنر دیا گیا۔ قمر زمان گائرہ نے کہا کہ قمر منہاس کو ملنے والا یہ ایوارڈ پورے ملک کے لیے اعزاز ہے۔ ان جیسی شخصیات ہم سب کے لیے باعث تقلید ہیں۔ معاون خصوصی سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ وزارت اوورسیز ہانگ کانگ میں اپنے پاکستانی بھائیوں کی خدمت کرنے پر قمر منہاس کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوورسیز وزارت قمر منہاس کی مشاورت سے ہانگ کانگ میں پاکستانی کمیونٹی کی فلاح کے لیے اقدامات کرے گی۔ قمر منہاس نے کہا کہ ہانگ کانگ سے ملنے والا اعلیٰ ترین سول ایوارڈ مجھے نہیں بلکہ پاکستان کو ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندر پار پاکستانیوں نے ہمیشہ ہر مشکل وقت میں اپنے وطن کی خدمت کی ہے۔ پاکستان سویٹ ہومز کے سربراہ زمرد خان نے کہا کہ قمر منہاس نے دیار غیر میں اپنے وطن کا نام بلند کیا۔ انہوں نے کہا کہ قمر منہاس نے 30 سال سے ہانگ کانگ میں پاکستان کا پرچم بلند کر رکھا ہے۔ تقریب سے پی ایف یو جے کے صدر افضل بٹ، نیشنل پریس کلب کے صدر انور رضا اور پیر آف موہڑا شریف پیر محمد مصطفیٰ فاروق گل بادشاہ نے بھی خطاب کیا۔ جہلم میں ورکرز کنونشن سے خطاب میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے کہا کہ عمران خان نے گالم گلوچ اور مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے کے سوا کچھ نہیں کیا۔ عمران خان ریاستی اداروں کو متنازع بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تفصیل بتائیں گے سمیع اللہ۔ ورکرز کنونشن سے خطاب میں سابق وزیر اعظم اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ 2018 میں اگر عوامی مینڈیٹ نہ چرایا جاتا تو ملک آج ترقی کی نئی راہوں پر ہوتا۔ گزشتہ 4 سال کے دوران ملک کو تباہ حال کیا گیا۔ عمران خان کی ہر بات جو اس نے کی ہے، امریکہ کی سازش لے کر ریاست مدینہ تک، جو توشہ خانہ کے معاملات ہیں، جو ملک کے اندر کرپشن کے معاملات ہیں، آج ہر بات عمران خان کی جھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے سیاست کی قیمت ادا کر کے پاکستان کے حالات کو درست کرنے کی ٹھانی ہے، مشکل فیصلے کیے ہیں۔ 4 سال کی غفلت، 4 سال کی نااہلی، 4 سال کی کرپشن چند مہینوں میں دور نہیں ہوتی۔ رہنما مسلم لیگ نون بلال کیانی نے کہا پی ٹی آئی حکومت نے پنجاب سمیت ملک بھر میں تباہی پھیلائی اور ضلع جہلم کو خاص طور پر نظر انداز کیا گیا۔ انہوں نے کہا موجودہ حکومت پی ٹی آئی دور کے خراب ملکی حالات درست کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ ملک دیوالیہ ہونے کی طرف چل رہا تھا، اس کو موجودہ حکومت نے آ کے سنبھالا ہے۔ بدقسمتی سے پنجاب حکومت میں وہی عمل جو بزدار کی حکومت میں تھا وہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے وہ اپنی کوششیں جاری رکھے گی۔ رہنما مسلم لیگ نون ملک ابرار نے کہا کہ مسلم لیگ نون جب بھی اقتدار میں آئی ملک میں ریکارڈ ترقیاتی کام کیے۔ میرے بھائیوں، جب بھی میاں نواز شریف کی گورنمنٹ ہوئی معیشت کا حال بہتر سے بہتر رہا۔ پورے پاکستان میں اگر صحت کے نظام کو دیکھے تو میرے قائد میاں نواز شریف نے ہاسپٹل بنائے، اگر تعلیم کی طرف دیکھے یونیورسٹیاں بنائیں۔ کنونشن سے خطاب میں دوسرے مقررین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے ملک میں تشدد اور انتشار کی سیاست کو عام کیا۔ مسلم لیگ نون بطور سیاسی جماعت ملکی حالات درست کرنے کے لیے مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز۔
फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सहाफी अरशद शरीफ के कत्ल के मामले पर खुद नोटिस लेने की इस्तदा की है। चीफ जस्टिस को लिखे गए मरासले में PFUJ ने सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज की सरबराही में कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त की है। मरासले में लिखा गया है कि अरशद शरीफ के कत्ल से सहाफती बरादरी गहरे सदमे में है और पूरी कौम कत्ल से जुड़े सवालात के जवाब चाहती है। वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा उमूर हिना रब्बानी खैर और काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर खारजा कैरात उमरोव के दरमियान अक़वाम मुत्तहिदा के लिए तहज़ीबों के इत्तेहाद के इजलास के मौके पर मराकश में मुलाकात हुई है। इस मौके पर दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत और खित्ते में रवाबित के फ़रोग़ पर इत्तेफाक किया गया। मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों की रियासती दहशतगर्दी जारी है। सफ़ा काबिज फौज ने ताज़ा कार्रवाई के दौरान जिला जम्मू में मजीद एक कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। KMS के मुताबिक भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को जिले के इलाके अरनिया में शहीद किया। कल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर वाइस उमर फारूक ने बेगुनाह कश्मीरी नौजवान को दौरान हिरासत कत्ल करने पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने गिरफ्तार नौजवान सज्जाद अहमद तांत्रे के कत्ल का हवाला देते हुए कहा कि जनूबी कश्मीर में एक माह से भी कम अरसे में ये दूसरा ज़ेर हिरासत कत्ल है। उन्होंने कहा है कि कश्मीरी नौजवानों को अस्करत पसंद करार देना और इन्हें काले कवानीन के तहत गिरफ्तार करना मकबूजा इलाके में मामूल बन चुका है। मकबूजा इलाके के तूल अर्ज से गिरफ्तार किए गए हज़ारों नौजवान बगैर किसी मुकदमे के जेलों में बंद हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच समेत इंसानी हुकूक की 12 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने मुश्तरका तौर पर इंसानी हुकूक की कश्मीरी अलंबरदार खुर्रम परवेज़ की फौरी रिहाई पर जोर दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की वेबसाइट पर जारी किए गए तंजीमों की तरफ से दस्तखत शुदा एक बयान में भारतीय हुकूमत पर जोर दिया गया कि वो इंसानी हुकूक के कारकुनों की सरगर्मियों को गैर कानूनी करार देना बंद करे और खुर्रम परवेज़ की गैर मशरूत रिहाई और उसके खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म करे। भारतीय पुलिस ने 6 कश्मीरी सहाफियों के घरों पर छापा मारकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने सहाफियों के केस की पैरवी करने वाले वकील के घर पर भी छापा मारा। तफसील बताएंगे वकार हैदर। ये है भारतीय फौज। ये शहरियों पर जुल्म बर्बरियत की दास्तानें तो बहुत रकम कर चुकी, लेकिन अब इनको सहाफियों से भी परेशानी है और वो ये है कि हमारे मजालिम की दास्तानें मीडिया की शह सुर्खियां क्यों बन रही हैं। वर्दी पहने ये भारतीय गुंडे सहाफियों के घरों पर छापे मार रहे हैं और वजह है कि उन्होंने सरकारी झूठी खबरें छापने से इनकार कर दिया था। तो इन पुलिस के गुमाश्तों ने 6 कश्मीरी सहाफियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके लैपटॉप और कैमरे कब्जे में ले लिए हैं और उनके मोबाइल भी जब्त कर लिए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन सहाफियों का केस लड़ने वाले वकील के घर पर भी छापा मारा गया है ताकि इनका केस भी ना लड़ा जाए। दूसरी तरफ हुकूमत नवाज अखबारात मामूल के मुताबिक चल रही हैं और भारतीय हुकूमत उनको भारी फंडिंग भी कर रही है। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत से 97 हिंदू यात्रियों का वफ्द मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वाघा बॉर्डर के रास्ते लाहौर पहुंच गया। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड के हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। हिंदू यात्री अपने मजहबी पेशवा अवतारी सदगुरु के 314वें जन्मदिन के हवाले से तकरीबात में शिरकत करेंगे। यात्री पाकिस्तान में 12 दिन क़याम के दौरान घोटकी, सखर, मीरपुर भी जाएंगे। हिंदू यात्रियों ने पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इंतजामात पर खुशी का इजहार किया है। इंडोनेशिया के जजीरे जावा में गुज़श्ता रोज आने वाले ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद 268 हो गई है। हलाक होने वालों में ज़्यादातर स्कूलों के बच्चे हैं जो ज़लज़ले के वक्त तालीमी सरगर्मियों में मसरूफ थे। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से लाशें निकाली जा रही हैं। हुकाम के मुताबिक ज़लज़ले में 1000 से ज़्यादा अफराद जख्मी जबकि 150 के करीब लापता हैं। इस कुदरती आफत में 58,000 अफराद बेघर और 22,000 मकानात को नुकसान पहुँचा है। इंडोनेशिया के सदर जोको विदोदो ने ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाले कस्बे क्यानजर का दौरा किया। उन्होंने इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ करने की हिदायत करते हुए कहा कि मुतासरा खानदानों को मुआवजा दिया जाएगा। कंबोडिया में जनूब मशरक़ी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के वज़ीर दिफा के इजलास के मौके पर अमरीका और चीन के वज़ीर दिफा की मुलाकात हुई जिसमें अहम उमूर ज़ेर गौर आए। अमरीकी वज़ीर दिफा ऑस्टिन लाइड और चीनी वज़ीर दिफा वेंग फेंग के दरमियान रवां साल में ये दूसरी मुलाकात है। पेंटागन के तर्जुमान पेट राइडर ने मुलाकात के हवाले से बताया कि अमरीकी वज़ीर खारजा ने बहरे हिंद और पैसिफिक में चीनी फौज की मौजूदगी पर खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि चीनी तैयारों के इलाके में प्रवाजों से सूरत हाल पेचीदा हो रही है, कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात की ज़रूरत है। बीजिंग में वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल का जिम्मेदार चीन नहीं, इसकी बुनियादी वजह अमरीका के गलत फैसले हैं। तर्जुमान ने कहा कि चीन दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए मुखलिस है, इसके लिए ज़रूरी है कि अमरीका अपने वादों को पूरा करे। तर्जुमान ने कहा कि अमरीका को चीन के बुनियादी मफादात और अहम खदशात का एहतराम करना होगा।
जापान ने नए इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा किया है। शुमाली कोरिया की जानिब से मुतअद्दिद मिसाइल तजर्बात के बाद जापान ने रद्द-ए-अमल के तौर पर अमेरिका के ताउन से ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए कामयाब इंटरसेप्शन टेस्ट की। बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिकी बहरी जहाज से फायर किया गया और इसने बहरुल काहिल के ऊपर 100 किलोमीटर की बुलंदी पर मिसाइल हमले को कामयाबी से नाकाम बना दिया। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस ने जौहरी तंसीबात पर हमला किया तो असरात पूरी दुनिया पर मुरतब होंगे। आलमी बरादरी जौहरी तंसीबात की हिफाजत के लिए मुआवनत करे। मैड्रिड में नेटो के पार्लिमानी इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रूसी फौज बिजली, पानी और तवानाई के ढांचे को तबाह कर रही है। लाखों लोगों की जिंदगियों को खतरात से दोचार करने पर रूस को दहशतगर्द रियासत करार दिया जाए। यूक्रेनी सदर ने मुतालबा किया कि नेटो हमें तैयारा शिकन दिफाई निज़ाम मुहैया करे और रूस के खिलाफ मजीद पाबंदियां नाफिज करे। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि बाज़ मगरबी ममालिक की मुहिम जोई और पॉलिसियों की वजह से पैदा होने वाली अदम तवाज़ुन की सूरत हाल के बावजूद ग़िज़ाई किल्लत के शिकार ममालिक की इमदाद जारी रखेंगे। मॉस्को में ज़राई शोबे से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए सदर पुतिन ने कहा कि रूस ग़िज़ाई सलामती के हवाले से अपनी ज़रूरियात और जिम्मेदारियों से आगाह है। हम अनाज, खुर्दनी तेल और दीगर मसनूआत का हुसूल यकीनी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सतह पर ग़िज़ाई बहरान के ज़िम्मेदार मगरबी ममालिक हैं जो इश्तियाल अंगेज़ पॉलिसीज़ पर अमल पैरा हैं। चीन से अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वसी सूबे हैनान के सनती पार्क में वाक़ फैक्ट्री में आतिशज़दगी से 38 अफराद हलाक हो गए। मकामी हुकाम के मुताबिक 4 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पा लिया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है, ताहम इब्तदाई तौर पर आग लगने की वजूहात सामने नहीं आ सकी। इस फैक्ट्री में सनती अशिया बिलखुसूस केमिकल्स की तैयारी का काम होता था। पाकिस्तान टेलीविजन मुल्क में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के शोबे में उरूज कमाल की हसीन दास्तान है, जिसने न सिर्फ नाजरीन पर मालूमात के नए दरीचे खोले बल्कि उनकी जहनी आबियारी में भी कलीदी किरदार अदा किया। PTV की 58वीं सालगिरह की मुनासबत से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सुफियान। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन सर्विस की जानिब से तारिक अजीज आपसे मुखातिब है। खबर की मज़रात आज जुमेरात है और नवंबर की 26 तारीख। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने सफ़र का आगाज़ रेडियो पाकिस्तान लाहौर के एक छोटे से कमरे से किया। इब्तदा में PTV की नशरियात 3 घंटे के लिए हुआ करती थी और सिर्फ 30 किलोमीटर के इलाके तक महदूद थीं। पाकिस्तान टेलीविजन ने अपने आगाज़ से ही जहां बहुत से तालीमी और मालूमाती प्रोग्राम्स पेश किए, वहीं PTV ड्रामे की बुनियाद भी रखी। नवंबर 1964 में पहला ड्रामा नजराना पेश किया गया। देखते ही देखते PTV के ड्रामे मकबूलियत की बुलंदियों को छूने लगे। 1965 की जंग में PTV की उम्र महज 1 बरस थी, लेकिन इस मौके को चैलेंज समझते हुए PTV के शोबा प्रोग्राम्स और न्यूज़ ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया और महाज़े जंग से रिपोर्टिंग का सिलसिला जारी रखा। 1976 में PTV की नशरियात रंगीन हो गईं। PTV करंट अफेयर्स, अहम कौमी मामलात पर आवाम को आगाही फराहम करने का फरीज़ा ऐसन तरीके से अदा कर रहा है। पाकिस्तान टेलीविज़न पिछले 58 साल से मुआशरे की तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है और आइंदा भी PTV इस खिदमत को जारी और सारी रखेगा। सेहतमंद और मयारी तफरीही प्रोग्राम्स के बायस PTV होम मुकम्मल फैमिली एंटरटेनमेंट चैनल है। PTV नेशनल पाकिस्तान के इलाकाई सकाफत के रंग बिखेरे हुए है। PTV स्पोर्ट्स खेलों के शायकीन के लिए किसी नेमत से कम नहीं। PTV वर्ल्ड मुल्क का वाहिद इंग्लिश TV चैनल है, जबकि PTV ग्लोबल दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मौजूद पाकिस्तानियों से नाता जोड़े हुए है। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। हुकूमत के मुस्बत इक़्तिसादी इक़दामात के नताइज, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान बरकरार है। 100 इंडेक्स 167 पॉइंट्स इजाफे के बाद 42,928 पर बंद हुआ। स्टॉक मार्केट में 19 करोड़ 59,73,000 से ज्यादा शेयर्स का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 6 अरब 78 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 24 पैसे की कमी हुई, जिसके बाद डॉलर की कीमत 223 रुपए 42 पर आ गई। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत खरीद 228 रुपए 75 पैसे, जबकि कीमत फरोख्त 231 रुपए है। वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर से जनूबी अफ्रीका के हाई कमिश्नर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। इस मौके पर जोहानिसबर्ग में 29 नवंबर को शुरू होने वाली 3 रोज़ा तीसरी पाकिस्तान अफ्रीका ट्रेड डेवलपमेंट कॉन्फ्रेंस और सिंगल कंट्री नुमाइश के निकात पर गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारत के फ़रोग़ के लिए वफूद के तबादले की ज़रूरत है। हाई कमिश्नर ने ज़रूरी पैदावार समेत अद्वियात, तालीम और जंगली जानवरों के तिजारत बढ़ाने में दिलचस्पी का इज़हार किया।
चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर से पाकिस्तान में डब्ल्यूएफओ के नुमाइंदे और यूनिसेफ के नायब नुमाइंदे ने अलग अलग मुलाकातें की। इस मौके पर बारिशों और सैलाब के तनाजुर में कुदरती आफात से निपटने के लिए मुस्तकबिल के लाहे अमल पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन एनडीएमए ने कहा कि मुस्तकबिल में टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम को बरूए कार लाया जाएगा। उन्होंने आलमी इदारा खुराक और यूनिसेफ की जानिब से सैलाब में इमदादी काविशों को सराहा। यूनिसेफ और डब्ल्यूएफओ के नुमाइंदों ने एनडीएमए के साथ मजीद ताउन जारी रखने के आज़म का इयादा किया। कराची प्रेस क्लब में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी शाह मोहम्मद अवैस नूरानी ने कहा कि इमरान खान इंतशार की सियासत से मुल्की इदारों को मुतनाज़ बना रहा है। इमरान न्याजी की कारस्तानियों पर भारतीय मीडिया बगले मचा रहा है। तहरीक इंसाफ के एजेंडे के भरपूर मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और आलमी ताल्लुकात की बहाली के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। सदर ममलिकत की अहलिया बेगम समीना आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की वजह से शरह अमवात की सूरत हाल खतरनाक है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में आगाही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में हर 9 में से एक औरत को ब्रेस्ट कैंसर लाहक होने का खतरा दरपेश है। बीमारी के बारे में शऊर उजागर करने की जरूरत है। नाज़रीन, पेशावर में सिनेमा कल्चर रफ्ता रफ्ता दम तोड़ रहा है, जिसकी बड़ी वजह यह है कि सिनेमा घर अब कमर्शियल प्लाजों और कार पार्किंग में तब्दील होते जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं पेशावर से अनवरुल्लाह खान। खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई दारुल-हुकूमत पेशावर फ़न और आर्ट का बेहतरीन शाहकार है, जहाँ पर माजी में तफरीह के कई मौके मौजूद हुआ करते थे। फिल्म बीनी भी इनमें से एक है। पेशावर में कुछ अरसा पहले तक 17 सिनेमा घर कायम थे, जिनकी तादाद अब कम होकर 6 रह गई है। सिनेमा बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री और फन व तफरीह को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। जो मेन मसला है ना, तो वो पहले ज़माने में जो फिल्में बनती थी उनके एक कल्चर के अंडर बनती थी, उनमें अपना सकाफत उजागर करने की कोशिश की करते थे, मगर अब जो है ना वो कुछ और सिस्टम है। इस वजह से ये फिल्म इंडस्ट्री नाकाम हुई। लोगों की फिल्मों में भी अदम दिलचस्पी है कि अब वो वाली फिल्में नहीं बनती हैं जो बननी चाहिए, और सबसे मेन मसला है वो यही है कि फिल्मों की अदम दस्तयाबी है। अब एक पिक्चर इंसान कितनी बार देखेगा। 17 सिनेमा में भरे होते थे, टिकट के लिए लोग इंतजार करते थे ना। अभी ये 6 सिनेमा घर भी मौजूद है, लेकिन रश उस तरह नहीं है जो होना चाहिए। सिनेमा घर उजड़े तो अदाकार भी बेरोजगार होते गए। यही वजह है कि सिनेमाओं के बंद होने से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग और फिल्म शायकीन को परेशानी का सामना करना पड़ा। अनवरुल्लाह खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर। मौसम सरमा की आमद के बावजूद जनूबी पंजाब में डेंगू के वार जारी हैं, तमाम हमलों की शिद्दत में कमी जरूर वाक़ हुई है। इस वक्त सबसे ज्यादा मरीज मुल्तान से रिपोर्ट हो रहे हैं। मरीजों की तादाद में इजाफे की वजूहात क्या हैं, जानने के लिए देखते हैं मुल्तान से फरहान मिर्जा की ये रिपोर्ट। ग्लोबल वार्मिंग के असरात ताहाल नवंबर के आखिर में भी मौजूद हैं। मौसमियाती तब्दीलियों और अवाम की बेहतियाती की वजह से डेंगू का दुरानिया सर्दियों तक आन पहुंचा है। ताज़ा दादोशुमार के मुताबिक रवां साल जनूबी पंजाब में डेंगू के 1800 केसेस रजिस्टर्ड हो चुके हैं। ताहम गुज़श्ता चंद रोज से केसेस की शरह में कमी जरूर रूनुमा हुई। गुज़श्ता 24 घंटों में जनूबी पंजाब में मजीद 5 अफराद में डेंगू वायरस की तशखीस हुई। इस दौरान सबसे ज्यादा 3 केसेस मुल्तान में रजिस्टर्ड हुए। खित्ते में मजमूई तौर पर 85% से जायद केसेस मुल्तान से ही रजिस्टर्ड हुए। मुल्तान में इंसिडेंस ज़्यादा इसलिए है कि ट्रैवल हिस्ट्री वाले ज़्यादा केसेस हैं। मुल्तान के बाद हमारा खानेवाल है, तो इसलिए आपके तवासुत से यही अवामुन्नास को पैगाम दिया जाता है कि वो अवामी सतह पे जितना हो सके एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें। खित्ते के सबसे बड़े अस्पताल निश्तर और शहबाज शरीफ हॉस्पिटल में अब तक डेंगू के 890 मरीजों को इलाज मुआलजे के लिए दाखिल किया गया, जिनमें से 9 अफराद जाँ बहक हुए। अस्पताल में कायम 102 बिस्तरों पर मुश्तमिल मखसूस वार्ड में अब भी 28 बिस्तरों पर डेंगू मरीजों का इलाज जारी है। गुज़श्ता 24 घंटों में 13 मरीजों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी डेंगू से बचाव के लिए अपने घरों के दरवाजे और खिड़की बंद रखें, मच्छरदानी का इस्तेमाल करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ सुथरा रखें। फरहान मिर्जा, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान।
जरासीम कुछ अद्वियात की मज़ाहमती असरात के बारे में आगाही और शऊर पैदा करने के लिए दुनिया भर में एंटी माइक्रोबियल आगाही हफ्ता मनाया जा रहा है। तफसील जानते हैं यासिर हुसैन से। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार जो है वो एंटीबायोटिक्स है। हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि एंटीबायोटिक्स कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मसला तब होता है जब हम अपनी मर्जी से बगैर किसी डॉक्टर से रुजू किए, बगैर किसी प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक्स यूज करना शुरू कर देते हैं। वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल यानी जरासीम कुछ अद्वियात के बारे में आगाही हफ्ता अक़वाम मुत्तहिदा के तहत हर साल 18 से 24 नवंबर को मनाया जाता है। आलमी इदारा सेहत ने जरासीम कुछ अद्वियात की मुदाफ़ियत को सेहत आमा का एक बड़ा मसला करार दिया है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में जरासीम कुछ मुजाहिमत हर साल 7 लाख अमवात का सबब बनती है। Antimicrobials are the backbone of modern medicine, but their misuse and overuse in humans, animals and plants is driving the emergence and spread of resistance. रवां साल इस हफ्ते का मौजू मिलकर बीमारी की रोकथाम के लिए मुतहरिक होना है। एंटी माइक्रोबियल्स ऐसी दवाएं हैं जो इंसानों, जानवरों और पौधों में इन्फेक्शन को रोकने और इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। पूरी दुनिया में बैक्टीरिया, वायरस और फंगस वक्त के साथ तब्दील हो रहे हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात में मुजाहिमत बढ़ रही है। ये जरासीम कुछ मुजाहिमत इन्फेक्शन का इलाज मुश्किल बना देती है, जिससे बीमारी फैलने, शदीद बीमारी और मौत का खतरा बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक इस्तेमाल काफ़ी कॉम्प्लिकेशन पैदा करता है, डैमेज करता है जिगर को, गुर्दों को और जिस्म के बाकी हिस्सों को। बाज़ दफ़ा ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। पाकिस्तान और दुनिया भर में इलाज मालजे के सिलसिले में एंटीबायोटिक अद्वियात का गलत और बेदरेग इस्तेमाल न सिर्फ इंसानों बल्कि जानवरों और माहौल के लिए भी खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। माहिरीन के मुताबिक एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एक संगीन मसला है और इसके सदेबाप के लिए मिलकर काम करने की जरूरत है। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत की अनथक कोशिशों और मौसर इक्तिसादी पॉलिसियों से मुल्की मईशत में नुमायां बेहतरी आई है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजिर बरादरी, सनत और तिजारत की तरक्की के साथ समाजी मैदान में भी सरगर्म अमल है। इनके मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। इस मौके पर गवर्नर पंजाब ने 19 बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल बरामद कुनंदगान में ट्रॉफीज तकसीम किए। सिंध के गवर्नर कामरान टिसोरी ने कराची में वफाकी ऐवान सनत और तिजारत के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें अफवाज पाकिस्तान पर फख्र है। इदारों पर बेजा तनकीद से पूरी दुनिया में मुल्क की बदनामी होती है। हमें किसी भी ऐसी साजिशी थ्योरी का हिस्सा नहीं बनना चाहिए जिससे मुल्क कमजोर हो। मसाइल के हल और मुल्क की तरक्की के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। पंजाब के कॉलेजेस में खेलों की सरगर्मियां बहाल करने का फैसला किया गया है। लाहौर में इजलास की वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि तालीमी इदारों में खेलों के जरिए मुस्बत सरगर्मियों को फरोग देंगे। इस सिलसिले में कॉलेजेस में खेलों के मुकाबले मुनाकिद करवाए जाएंगे। उन्होंने डायरेक्टर कॉलेजेस को ज़रूरी सहूलियात की अदम फराहमी पर रिपोर्ट करने की हिदायत की। वज़ीर आला ने कहा कि यूनिवर्सिटीज़ में फ़ंड्स के शफाफ इस्तेमाल के लिए इस्लाहात की जाएंगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कुद्दूस पुजिंजो से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम ने मुलाकात की। इस मौके पर सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद, जारी ताउन के मंसूबों और सरमायाकारी के हवाले से गुफ्तगू हुई। मीर अब्दुल कुद्दूस पुजिंजो ने कहा कि बलूचिस्तान में सरमायाकारी के वसी इम्कानात मौजूद हैं। रेकॉर्ड एक सरमायाकारी का गेटवे साबित होगा। उन्होंने कोयटा में अमराज कल्ब के मरीजों के लिए शेख ज़ायद कार्डिक मरकज़ के क़याम पर मुत्तहिदा अरब अमारात का शुक्रिया अदा किया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने सूबे के तमाम सरकारी कॉलेजेस में तलबा और तालिबात को दाखिला और ट्यूशन फीस की माफ़ी के लिए हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को 98 करोड़ से ज़ायद रुपए जारी करने की मंजूरी दी है। 2,44,000 से ज़्यादा तलबा और तालिबात मुस्तफ़ीद होंगे। सूबाई काबीना के इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आला महमूद खान ने तमाम नए सरकारी इदारों में अमले की बरवक्त तैनाती की हिदायत भी की। पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा है कि इमरान खान ने मुल्क में सियासी कल्चर और रिवायात को ख़त्म कर दिया है। लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि इमरान खान की सियासत इंतशार पर मबनी है। वो माशरे को तकसीम करने के साथ इदारों पर बेजा तनकीद कर रहा है। उन्होंने कहा कि गन्ने की बरवक्त क्रशिंग शुरू न होना पंजाब हुकूमत की बड़ी नाकामी है।
सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास सैफुल्ला अबड़ो की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में नंदीपुर और चीचों की मलिया मंसूबों की नीलामी के हवाले से बेजाबतगियों के मामले पर कमेटी ने तजवीज़ किया कि वजारत जरूरी इकदाम करके रिपोर्ट पेश करे। कमेटी ने के इलेक्ट्रिक को 2008 के वाजिबुल अदा 58 अरब के गर्तशी कर्ज से फौरी अदा करने की हिदायत की। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंसानी हुकूक ने चाइल्ड राइट्स कमीशन पंजाब की रिपोर्ट को अफसोसनाक करार दिया है। चेयरपर्सन महरीन रजाक भुट्टो की सदारत में होने वाले इजलास को चाइल्ड प्रोटेक्शन इस्लामाबाद समेत सूबों के नुमाइंदों से किए गए इकदाम पर ब्रीफिंग दी गई। मजलिस कायमा में ज़ैनब अलर्ट बिल, अक़लियती मैरिज एक्ट, मजहब की जबरी तब्दीली और अफगान महाजरीन के हवाले से भी बात हुई। सल्तनत ओमान के 52वीं कौमी दिन के मौके पर कराची में तकरीब हुई। तफसीर बताएंगे मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन। सल्तनत ओमान का शुमार अरब ममालिक में होता है और ये एशिया के जनूब मगरिब में वाक़ है। बहीरा अरब के साहिल पर वाक़ ये मुल्क सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन से इसकी सरहदें मिलती हैं, जबकि समंदरी हुदूद में पाकिस्तान इससे मिलता है। 52वें कौमी दिन की तकरीब में सिंध के गवर्नर कामरान टिसूरी के अलावा सूबाई वज़ारा सईद गनी, नासिर हुसैन शाह और मुतअद्दिद सिफारतकारों और अमायदीन शहर ने भरपूर शिरकत की। गवर्नर कामरान टिसूरी ने कहा कि पाकिस्तान ओमान के साथ ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है और माशी मैदान में वुसअत का ख़्वाह है। ओमान और पाकिस्तान एक ब्रदरली कंट्री है और ओमान ने हमेशा पाकिस्तान के साथ बहुत ही जिसे कहते हैं शफकत वाला, भाइयों वाला और मोहब्बत वाला ताल्लुक़ रखा है। कराची में ओमान के कौंसिल जनरल समी अब्दुल्ला अल खंजरी ने कहा कि दोनों ममालिक मुतअद्दिद चीज़ों में मुश्तरका मुमासलत रखते हैं, जबकि वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पा रहे हैं। ओमान पाकिस्तान रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, हिस्टोरिकल है और हम लोग बहुत सिमिलरिटी है कि अब नेशनल रिलीजन है, कल्चर है, इवन द फूड, सी इवन हत्ता खाना भी ऑलमोस्ट सेम है। इस मौके पर सिफारतकारों के हमरा कौमी दिन का केक काटा गया, जबकि दोनों ममालिक का कौमी तराना भी पढ़ा गया। बरादराना ताल्लुकात के साथ साथ पाकिस्तान और ओमान मुश्तरका सकाफत और मजहब के लिहाज से भी जुड़े हुए हैं। मोहम्मद ज़ुबैरुद्दीन, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, कराची। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, ताहम पंजाब के मैदानी अजला में सुबह के औकात में धुंध पड़ने की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लै -8, अस्तोर कालाम -5, ज़ियारत स्कर्दू -4, बगरोट हुंजा -3, गोपस कालात -2, बारामूला और गिलगित में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जिस्मानी माजूरी तरक्की की राह में रुकावट नहीं होती, मगर इसके लिए मुनासिब तवज्जो और सेहतमंद माहौल अहम किरदार अदा करता है। खैरपुर के नवाही इलाके का नौजवान नादिर हुसैन, जो न सिर्फ मुल्की बल्कि आलमी सतह पर मुख्तलिफ खेलों के मुकाबलों में नुमायां पोजीशन हासिल कर चुका है, इन दिनों इंतहाई कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। इस हवाले से देखते हैं सक्खर से इमरान मलिक की यह रिपोर्ट। सिंध के पसमानदा देही इलाके पीर जो गोट से ताल्लुक रखने वाला नादिर हुसैन, जो बचपन से ही कुव्वत समात और गोयाई से महरूम है, फुटबॉल का खिलाड़ी और बेहतरीन एथलीट है। मुल्की और आलमी सतह के मुकाबलों में दर्जनों मेडल जीत चुका है। 2 बार वर्ल्ड स्पेशल ओलंपिक्स में हिस्सा लेकर नुमायां पोजीशन हासिल की। कोरोना वबा के बाद माली हालात से तंग आकर ये बासलाहियत नौजवान कराची से अपने आबाई इलाके पीर जोगोट मुंतकिल हो गया, जहां एक कमरे के घर में अपने अहले खाना के दीगर 8 अफराद के साथ रहायश पजीर है। ये दरख्वास्त कर रहे हैं कि बराए करम हमारे भाई के लिए कुछ किया जाए, इस टैलेंट को इस तरह ज़ाया ना किया जाए। ये पाकिस्तान का टैलेंट है, ये पाकिस्तान का असासा है। नादिर अली अपने मेडल्स देखकर दोबारा खेलने की हसरत करता है, मगर कोई इदारा इस गैर मामूली सलाहियतों के हामिल नौजवान की मदद को तैयार नहीं। ये कहता है, मारता है, पीटता है, अब ये इधर नहीं रह सकता, कहता है कि मैं इधर नहीं रहूंगा, मेरे लिए कुछ करूं, मैं कहाँ से इसके लिए कुछ करूं। नादिर हुसैन अमली तौर पर अब खेलों से दूर हो गया है। कोई जरिया माश न होने की वजह से बहुत कस्मा पुरसी की जिंदगी गुजार रहा है। इस टैलेंट को उभार कर मुल्की और आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया जा सकता है।
इमरान मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, सक्खर। स्पोर्ट्स डेस्क से अब तक के लिए इतना ही। अब चलते हैं मेन डेस्क की जानिब। शुक्रिया शफीक। इसके साथ ही बुलेटिन खत्म हुआ। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।